Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a flywheel rotating at the rate of 100 rpm slows down at a constant rate of 2 radian per second square. We need to calculate the time it will take to stop and the rotation it will make before coming to rest. So इस question को समझने के लिए we need to understand about the concept of equation of motion for a rotating body. So जैसे हमने equation of motion पढ़ा है, equation of motion that is three kinematical equation, that is v equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, and velocity displacement equation v square equals to u square plus 2as. So ये जो हमने equations लिखे, it is for a linear or a translation motion. ठीक है, इसी के analogous we can say for rotation we can say v can, that is v is a final velocity. So v can be replaced with angular velocity, that is final angular velocity will be equals to u, यहाँ पे था initial velocity तो यहाँ पे हम initial angular velocity लिखेंगे plus a is linear acceleration, we will substitute it with alpha, that is angular acceleration into t. So ये expression बन गया for equation of motion for rotating body. s यहाँ पे displacement था, तो यहाँ पे linear displacement था, but यहाँ पे ये angular displacement होगा, so theta ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. रेस्ट ऑफ द थिंग विल रिमेन द सेम, जो कि कन्वेंशन हम फॉलो करेंगे, दैट इज 2 विल बी द सेम. ओमेगा फाइनल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस ऑफ 2 अल्फा थीटा. सो इस तरीके से वी विल बी अप्लाइंग दिस इक्वेशन. एंड वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन थे, इट इज वैलिड ओनली फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड केस, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ठीक है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो या रिटार्डेशन हो, कांस्टेंट होना चाहिए. अगर acceleration constant है, so we can apply this equation. Similarly for a rotating body also, so this is the case for rotation or a rotating body. इसके अंदर अगर constant acceleration हो तो we can apply this equation. So now we can begin with the part or the question. तो हमें बोला गया a flywheel rotating at the rate of 100 rpm, यानी कि n हमें given है initially, n I is given as 100 rpm. इसको अगर हम कन्वर्ट कर लें आरपीएस में तो वी नीड टू जस्ट डिवाइडेड विद 60. सो ये आ जाएगा 5/3 आरपीएस. ठीक है, स्लोज डाउन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि अल्फा हमें गिवन है 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, कैलकुलेट द टाइम इट विल टेक टू स्टॉप, यानी कि फाइनल जो होगा बेसिकली ओमेगा फाइनल की अगर हम बात करें, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी विल बी 0. सो इसका टाइम निकालना है हमें, तो फर्स्ट इक्वेशन हम क्लियरली देख सकते हैं, वी कैन अप्लाई इट. So we can say omega final can be written as omega initial can be written as 2 pi into ni, and this will be minus of alpha t. क्यों माइनस डाला हमने? Because we can see के it is a case of retardation, so velocity के opposite direction में acceleration act कर रहा है. ठीक है ना, so negative sign will has to be there over here. So 0 will be equals to 2 pi ni, or just we can say, okay, we will put it alpha t. Alpha तो basically 2 है हमें given. So from here we can say 2t will be equals to 2 pi ni. So यहाँ से 2 और 2 cancel. So t की वैल्यू आ रही है हमारे पास 5 pi by 3 seconds. So this is the first part of the answer to the question. Second में हमें बोला है कि and rotation it will make before coming to rest. कितने रोटेशन उसने किया होगा, तो उसके लिए हमें थीटा पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा. फॉर वन कंप्लीट रोटेशन हमें पता है कि थीटा कितना होगा फॉर वन कंप्लीट रोटेशन. फॉर कंप्लीट रोटेशन थीटा विल बी 2 पाई. ठीक है, ऐसे कितने उसने चक्कर लगाए होंगे, दैट विल करस्पॉन्ड्स टू थीटा विल बी इक्वल्स टू 2 पाई एन. अब वो थीटा हम ढूंढ लेंगे तो हमें एन की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज नंबर ऑफ रोटेशंस. ठीक है, सो यहाँ पे वी कैन अप्लाई द थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, दैट इज ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस ऑफ 2 अल्फा थीटा. तो थीटा हमें यहाँ से मिल सकता है, तो फाइनली इट विल बी कमिंग टू रेस्ट, दैट मीन ये 0 हो जाएगा. एंड ओमेगा इनिशियल के स्क्वायर की हम बात करें, सो इट विल बी ओमेगा इनिशियल हम लिख सकते हैं 2 पाई एन आई का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 4. अल्फा भी 2 है, एंड माइनस क्यों? बिकॉज वी कैन सी के थीटा और अल्फा दोनों ही अपोजिटली डायरेक्टेड है, राइट. एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, थीटा डिस्प्लेसमेंट आगे, तो नेगेटिव साइन विल बी ओवर हियर. एंड यहाँ पे वी कैन सी के 4 इंटू थीटा.
सो यहाँ पे देख सकते हैं ये वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, इट कैन बी रिटन एज 4 पाई स्क्वायर इंटू एन आई की वैल्यू कैन बी रिटन एज 25/9 माइनस ऑफ 4 इंटू थीटा, और जस्ट वी कैन से 4 थीटा यहाँ लिख देते हैं हम। तो थीटा थीटा 4 कैंसिल हो जाएगा। सो फ्रॉम ईयर थीटा की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 25 पाई स्क्वायर/9। So this is the value of theta we are getting. So finally we can say the number of rotation will be theta upon 2 pi. So यहाँ से the answer will be 25 pi divided by 18. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.